Today we start with one of the wonderful habits, that is habit 2, which is called as begin with the end in mind. Begin with the end in mind. End को दिमाग में रखते हुए प्लान करो. एंड को देखते हुए अपनी लाइफ प्लान करो. एंड को देखते हुए सभी चीजें करो. कोई काम शुरू करने से पहले उसका एंड देख लो. कोई बिजनेस शुरू करने से पहले उसका एंड देखो. कोई गोल, कोई प्रोजेक्ट, कोई टास्क लेने से पहले उसका एंड विजुअलाइज करो. What this will help? This will help in a lot of things, as we will learn today. Let's see some of the what you will learn section here. Principles of personal leadership. In this habit 2, we become a leader of our own self. Then all things are created twice. आज एक बहुत powerful universal law हम सीखने जा रहे हैं. Okay? All things are created twice. Then we will talk about re-scripting your life, becoming your own first creator. You will re-script your life. You will learn the techniques to re-script your life. Then at the center, we will understand what is our center and where are we centered. हमारा सेंटर कहाँ पर है और कहाँ से हम लकीरें खींचते हैं, कहाँ से we draw references to everything we do. Then we will also talk about a personal mission statement, very very powerful. ये सुना नहीं होगा ज्यादा लोगों ने, या सुना भी होगा तो we may not have used it yet. It's very very powerful tool. हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन स्टेटमेंट होता है, ये most of us, all of us might know. Organization or company or business has a mission and vision statement. But do we also know a individual person can also have a mission statement? Yes, he can, she can. Okay, so we will talk about that and how it influences your life further. Then using your left brain, right brain theory, and we will talk about how you can use the power of right brain to visualize your dreams, to visualize your future better, and how to reach that. Then we will also end the session with the how to apply some of the tips and tricks that you can take back home and apply in your own lives. Now begin with the end in mind. तो देखो यहाँ एक बहुत सुंदर स्लाइड है, कितना सुंदर एक रास्ता है, एक हॉराइजन यहाँ पे दिख रहा है, एक जर्नी शुरू हो रही है. तो कोई भी जर्नी शुरू होती है, हम बहुत सारी चीजें शुरू करते हैं ना. वी स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, वी स्टार्ट टास्क, छोटे होते हैं कुछ चीजें, कुछ बड़ी होती है, राइट. सम थिंग्स टेक मिनट्स, सम थिंग्स टेक आवर्स, सम थिंग्स टेक डेज, सम थिंग्स टेक ईयर्स टू कंप्लीट, राइट. सो वी हैव different goals in our lives, tasks, action points and journeys and projects. क्या क्या कॉमन है इन सब चीजों में, मुझे बताओ. क्या कॉमन होता है? टास्क 5 मिनट का हो या 1 साल का हो, उसमें कॉमन क्या है सब चीजों में, इन सब चीजों में? द कॉमन थिंग इज देयर इज अ स्टार्ट एंड देयर इज एन एंड. सो एवरीथिंग दैट स्टार्ट्स हैज एन एंड. Our lives has an start and our life, not literally but yes, in terms of body, yes, it ends. So there is a start and end to a lot of things. ठीक है, तो जहां स्टार्ट आता है वहां एंड आता है. तो ये हैबिट क्या बता रहा है? एंड को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. बिगिन विद द एंड इन माइंड. नाउ वी विल बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी नाउ विद अ लिटिल कोट. सो लेट्स जस्ट रीड दिस कोट हियर. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. Oliver Wendell Holmes. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हमारे आगे और पीछे जो है वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट इज इनसाइड अस. हमारे अंदर जो है पोटेंशियल, जो छुपा पड़ा है, जिसको खोलना है, जिसको जगाना है, वो ये पूरे पोटेंशियल से भी ज्यादा है. पास्ट और प्रेजेंट का जितना पोटेंशियल हमने देखा है ना, ये दिस इज स्टिल अनफ्लावर्ड, अंडर यूटिलाइज्ड पोटेंशियल. ओके. प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल लीडरशिप. हाउ वी बिकम अ लीडर. देखो, खुद के लीडर बनोगे तभी तो किसी और को लीड करोगे ना. लीडर बनने के लिए क्या लगता है वो आज हम समझेंगे. तो लीडरशिप का सेशन तो नहीं है ये, लेकिन ये हैबिट लीडरशिप को टच करती है, बिकॉज यू बिकम योर ओन पर्सनल लीडर विद दिस हैबिट. लीडर्स आल्सो बिगिन विद द विजन. Leaders also begin with the end in mind. So in this principles of personal leadership, we will begin with a beautiful meditation here. ठीक है. Now some of you may find this meditation a little depressing, but bear with me here. This is very very nice. ठीक है, तो इससे डिप्रेसिंग मत समझना. पहले बता देता हूँ क्या करना है इस मेडिटेशन में. तो ये क्या कर रहा है, हमें अपने माइंड के आई में हमें आंखें बंद करके हम एक फ्यूनरल पे जाने वाले हैं. वी आर ऑल गोइंग टू अटेंड अ फ्यूनरल. देखो, हैबिट का नाम है ना बिगिन विद द एंड इन माइंड. तो हमारे लाइफ कहाँ पे एंड हो रही है वो हमें देखना है. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी रेट्रोस्पेक्टिव मेडिटेटिव थिंग. कुछ लोगों को इंसाइट्स भी आएंगे इसमें से, ऐसा भी हो सकता है. और अभी अगर हम कम समय के लिए भी कर रहे हैं तो आप इसको बाद में बड़े ज्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं. पूरी लाइफ आपको रेट्रोस्पेक्ट में देखनी है इसमें. ठीक है. तो आपको एक फ्यूनरल अटेंड करना है, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज योर ओन फ्यूनरल. ओके. तो किसी और के फ्यूनरल तो हमने देखे हैं, ये हमारा खुद का सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं. सो डोंट फील बैड अबाउट इट, विच इज एनीवे गोइंग टू हैपन वन डे और सूनर और लेटर. तो आपको ये देखना है कि ये मेरा ही फ्यूनरल है और मैं वहां पे हूँ. बट जागा हुआ नहीं हूँ, अभी कॉफिन के अंदर हूँ, एंड आई एम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. ठीक है. और लोग हैं वहां पर, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो जो आप लोग आपके वेल विशर्स हैं, वो सब लोग वहां पर हैं. तो आपको क्या देखना है इसमें, कि आप किस
उस सिचुएशन पे क्या क्या चल रहा है। तो ये कुछ दिन करने से ही लाइफ का आपका पर्सपेक्टिव ही बदलने लगेगा। जो फ्यूटाइल चीजों में हम टाइम वेस्ट करते हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे और नए इनसाइट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक जस्ट ग्लिम्स। ओके, नाउ आई जस्ट मूव ऑन टू द फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स। ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। ये देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। दो बार हर चीज क्रिएट होती है। जो भी चीजें घट रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, वो दो बार बनती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब बनती है? पहली बार वो हमारे मेंटल प्लेन में बनती है। तो कोई भी चीज आप नोटिस करोगे ना, पहले एक थॉट आता है। सबसे पहले थॉट प्लेन से काम शुरू होता है, मेंटल प्लेन से काम शुरू होता है। दो बार चीजें बनती है। पहली बार आपके थॉट्स में बनती हैं, या तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो सीड रूप में आती है, जैसे सीड बिकम्स अ ट्री। तो दो बार चीजें बनती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता। नाउ आई विल रीड दिस पॉइंट here. Habit 2 is based on the principle that everything is created twice. Begin with the end in mind. तो आपको पहले ही करेक्ट बनाना है, आपके थॉट्स में ही करेक्शन लाना है। नाउ लेट्स रीड द सेकंड पॉइंट। द एक्सटेंट टू व्हिच यू बिगिन विद द एंड इन माइंड ऑफ्टन डिटरमिन्स वेदर और नॉट यू आर एबल टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज का मतलब यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं है। एंटरप्राइज मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आप लेने जा रहे हैं, जितनी क्लियरली आप उसको पहले प्लेन पे देखते हैं, उतना ही क्लियर लेआउट वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन में बन। तो दो बार क्रिएट हो रही है, पहले थॉट में चीजें बन रही है, फिर फिजिकल में बन रही है। तो अगर थॉट्स में ही इंप्रेशन करेक्ट नहीं आ रहा है आपका, देन फिजिकल रियल में करेक्ट मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेगा आपको। सो द सेकंड पॉइंट टेल्स यू दैट आपको क्लियरली देखना है अपने गोल को। अभी थोड़ा हमें और समझ में आएगा जैसे जैसे वी गो इनटू दिस टॉपिक, बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्या आपकी लाइफ डिफॉल्ट है, क्या आपकी लाइफ डिजाइन है? Are you designing your life by the power of your thoughts? Are you actually taking intentions and visualizing the goals that you want? Or are you just going with the whims of the wind कि जिधर हवा चल रही है उधर चले गए by default? या फिर by default can also mean you are living by somebody else's script. देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पॉइंट। I'll just read out the points and it will make it more clear. Are you living out someone else's script? ज्यादातर लोगों के साथ तो यही हो रहा है। देखो हमें क्या लगता है? हमें लगता है ना कि हम एक बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मेरे अपने डिसीजंस होते हैं, मुझे लगता है हमारे बच्चों को हम अपने तरीके से बताते हैं, हमने अपना कॉलेज किया है, ये किया है, वो किया है, प्रोजेक्ट करते हैं, जॉब करते हैं, हमें एक फैंटेसी रहती है कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग समवन एल्सेस स्क्रिप्ट। तो हमें क्या करना है ना, डिजाइन करना है। यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ। कैसे करोगे? बाय द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, बाय द पावर ऑफ राइटिंग डाउन, बाय द पावर ऑफ राइटिंग अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट फॉर यू, which we will go to in a second. But understand that things are created twice. And if you want them to be manifested properly in your life, you have to create them well on your mental plane first. Now let me read the second point here. Habit 1 says you are the creator. क्योंकि बी प्रोएक्टिव में हमें पता चला कि हमारे पास ही कंट्रोल है। तो हैबिट 1 बताती है कि बीइंग प्रोएक्टिव, यू आर योर ओन क्रिएटर। तो पहले तो वहां से हमने सीखा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। देन हैबिट 2 सेज इट इज द फर्स्ट क्रिएशन। तो अब क्रिएटर बन गए, ये समझ में आ गया, प्रोएक्टिविटी आ गई। तो हम ये समझेंगे कि अब अपना क्रिएशन करना कैसे। ओके, नाउ लेट्स आल्सो सी द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो हैबिट 2 इज लीडरशिप, हैबिट 3 इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट हैबिट में हम मैनेजमेंट फ्लेवर को टच होता है। Habit 2 touches on leadership. Why? Because habit 2 is the first creation. Leader creates first and then others follow. That's why this habit touches leadership, your own leadership, self leadership. Then we'll see a little deeper into the same topic, that is re-scripting. तो देखो अभी हमने ये समझा कि हम सबको लगता है सिर्फ कि हम अपनी स्क्रिप्ट जी रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। We are, most of us are living somebody else's script. Now in becoming your first creator, in becoming your own creator, you need two qualities जो हम सबके पास है। ठीक है, एक आपको चाहिए क्वालिटी ऑफ इमेजिनेशन और दूसरी चाहिए कॉन्शियस टू डिजाइन योर लाइफ। आई विल जस्ट रीड दिस पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। यू नीड दीस टू क्वालिटीज टू डिजाइन योर लाइफ, व्हिच इज इमेजिनेशन एंड कॉन्शियस। इनका मीनिंग हम समझते हैं इन अ सेकंड। In second point, in developing our self-awareness, we find deeply embedded habits, unworthy of us, incongruent with what we really value. And habit 2 says we don't have to live with those scripts anymore. ठीक है, नाइस पॉइंट्स। तो आई स्टार्ट विद पॉइंट 2 हियर। तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, इन हैबिट 1 आल्सो वी डिड सेल्फ अवेयरनेस बाय लुकिंग, अपने आप को देखने का मेडिटेशन किया। आज हमने एंड को विजुअलाइज करने का मेडिटेशन किया कि हमारी लाइफ एंड में कहाँ पहुंचेगी, या लोग हमारे बारे में क्या स्क्रिप्ट लिखेंगे कि ये कौन था, क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है, तो इन दोनों सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन में हम जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ हैबिट्स हैं हमारे अंदर, कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ रॉन्ग बिलीफ्स बैठ गए हैं हमारे बारे में, जो हमारे वैल्यू से मेल नहीं खाते। तो कुछ इनकॉन्ग्रुएंट हैबिट्स हैं जो वैल्यूज से मेल नहीं खाती। तो ये हमें अवेयरनेस में पता चलता है। रीडिजाइन कैसे करोगे, कहाँ कहाँ पे ब्लॉक्स है वो पता चलेगा। तो रिडिजाइन करने के लिए अवेयरनेस में वी विल कम टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देन वी डोंट हैव टू लिव विद दोस स्क्रिप्ट्स नाउ, we take a stand in this habit, we take a stand. How will you re-script it now with these two powerful qualities? One is imagination, one is conscience. अभी आगे हम देखते हैं ये कैसे करना है। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट के बीच में, ये कंडीशन के बीच में हमारा एक सेंटर है। तो चार मेजर हमारे पैराडिम्स हैं। तो ये चार बेसिक पैराडिम्स होते हैं। ठीक है,
गाइडेंस, सिक्योरिटी, पावर एंड विजडम। तो ये 4 चीजें हमें नीड है एक हाईली लेवरेज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लाइफ जीने के लिए। ये 4 सोर्स है हमारे। सिक्योरिटी का मतलब सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। सिक्योरिटी मतलब आपकी सेंस ऑफ वर्थ। सिक्योरिटी यानी लाइफ सिक्योरिटी, हमारी लाइफ सिक्योर है क्या हम सोचते हैं। तो एक सेंस ऑफ वर्थ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, है ना, सेंस ऑफ फैमिली, सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, पर्सनल स्ट्रेंथ, दैट इज सिक्योरिटी। इससे आपको पर्सनल स्ट्रेंथ मिलती है। गाइडेंस मतलब डायरेक्शन, मैप्स, मेंटर्स, टीचिंग्स, स्कूलिंग। ठीक है। फिर विजडम। विजडम यानी आपने जो निचोड़ निकाला है उस टीचिंग्स का। विजडम मतलब वो बुकिश नॉलेज नहीं है, बुकिश मतलब उसका एसेंस क्या सीखा है आपने। तो एक हमने जो पढ़ा है, एक मेंटरशिप लिया, टीचिंग लिया, उससे एक एसेंस तैयार होता है, एक नया स्क्रिप्ट तैयार होता है, एक आपकी कॉन्शियस तैयार होती है, दैट इज विजडम। विजडम मीन्स योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। एंड फोर्थ इज पावर। पावर इज योर एक्शन पावर, पावर इज योर मेंटल पावर, फैकल्टी टू एक्ट, स्ट्रेंथ एंड पोटेंसी टू अकम्प्लिश समथिंग। तो ये 4 चीजों की ना नेसेसिटी है। ठीक है, दे आर इंटरडिपेंडेंट थिंग्स, ये अलग नहीं है। सिक्योरिटी और गाइडेंस से विजडम आता है, और विजडम वो स्पार्क बनता है जिससे पावर रिलीज होती है। तो देखो चारों कनेक्ट हो गए। ये सेंटर के 4 मेन पैराडिम्स हमारे होते हैं। अभी लोग कौन कौन से सेंटर से जीते हैं हम वो सीख रहे हैं। देखो ये इतने सारे, एक बार जस्ट देख लो, टेक अ सेकंड टू लुक एट ऑल दीज ब्यूटीफुल इमेजेस हियर। फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो ये तो देखो 3 4 5 9 टाइप के सेंटर्स होते हैं। दीज आर ऑल अल्टरनेटिव सेंटर्स व्हिच वी थ्रू व्हिच वी लिव आवर लाइव्स। बट इन ऑल ऑफ दीज केसेस एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि आप एक चीज पे अटैच्ड है। दिक्कत कहाँ पे होगी मुझे बताओ। दिक्कत ये होगी जब वो बेस टूटता है। तो इन सब सेंटर्स का दिक्कत ये है कि हम किसी ना किसी चीज पे अटैच्ड है। तो ऑल ऑफ दीज आर नॉट गुड और बैड, ऑल ऑफ दीज आर लिमिटेड व्यू ऑफ लिविंग लाइफ, आइडेंटिफाइंग योर सेंटर। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि हम कौन से सेंटर पे जी रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद हमें थोड़ा सा पता चला कि हम कौन से सेंटर बनाकर जी रहे हैं। अब ये करने के बाद ये पॉइंट्स मैं पढ़ता हूँ, तो उसको समझो। व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ योर ओन लाइफ, ये पता चलेगा। एज अ पर्सन फ्लक्चुएट्स फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर, लाइफ बिकम्स अ रोलर कोस्टर राइड। तो ये भी होता है। यू बोरो स्ट्रेंथ फ्रॉम वन एंड वीकनेस टू कॉम्पेंसेट फॉर द अदर। तो देखो जो लोग इन सेंटर्स 9 सेंटर्स में से कोई भी एक सेंटर लेके जी रहे हैं ना, उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड होती है। क्योंकि देखो एक एनिमी, एक फ्रेंड एनिमी बन गया, तो फ्रेंड सेंटर से एनिमी सेंटर लाइफ हो गई उसी की। तो किसी भी तरह से ना आपका शिफ्ट हो सकता है, ये शिफ्ट को समझो। तो जो भी आप एक सेंटर को पकड़ोगे ना, तो ऐसा हो सकता है उस सेंटर को कोई हिलाएगा तो आप दूसरे सेंटर पे शिफ्ट हो जाओगे तुरंत। क्योंकि फिक्स रेफरेंस नहीं है, दीज आर ऑल ऑल्टरनेटिव रेफरेंसेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बताने की कोशिश करें यहाँ पे। तो अगर आपका कोई एक सेंटर है, यू विल कॉम्पेंसेट ऑल द अदर वीकनेसेस ऑफ लाइफ थ्रू दैट सेंटर ओनली। ठीक है। नाउ विद दिस वी गो इनटू द प्रिंसिपल सेंटर। ये प्रिंसिपल सेंटर क्या हो सकता है अब। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेंटर कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। प्रिंसिपल सेंटर क्या है, देखो प्रिंसिपल सेंटर हेल्प्स यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द सिचुएशन एंड एक्ट पर योर प्रिंसिपल्स एंड पैराडाइम्स। प्रिंसिपल्स एंड देन व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, उसके हिसाब से आप एक सेंटर बनाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स डोंट लाई, दे आर डीप फंडामेंटल ट्रुथ्स। देखो इफ यू पिक अप वन एंड ऑफ द स्टिक, यू पिक अप द अदर। तो जो चीजें डुअलिटी में हम जी रहे हैं ना, आप एक स्टिक का एक साइड उठाओगे तो दूसरा साइड उठता है उसका अपने आप। करेक्ट, एक एक साइड उठाओ दूसरा नहीं उठाओ, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है। तो पर्सनल पावर कहां से आती है, प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग में आती है। प्रिंसिपल कहां से आएंगे, जो आप बनाओगे। आप वर्ल्ड को देखते हैं एक अपने फंडामेंटल पैराडिम के साथ। नो वन इज फोर्सिंग यू, नो सेंटर इज फोर्स अपॉन यू। ठीक है। करेक्ट मैप्स इनेबल अस टू क्लियरली सी वेयर वी वांट टू गो एंड हाउ वी गेट देयर। तो ये कैसे बनेगा, इनर सेंटर पर हम सब कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाकर। तो हमें पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना है। कैसे बनाना है, विल सी हियर। मोस्ट इफेक्टिव वे टू बिगिन विद द एंड इन माइंड इज टू क्रिएट अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। लेकिन पर्सनल मिशन हमें बताता है कि हमें कहां पहुंचना है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर मीनिंग ऑफ बिगिन विद द एंड इन माइंड। यू सी योर मिशन राइट हियर एंड नाउ एंड यू क्रिएट इट एज अ पावरफुल मिशन स्टेटमेंट, जो आपको याद रहेगा, जिसको आप चिपका सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, बार बार देख के आपको वो एनर्जाइज करेगा। देन इट इज योर पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉस, जिसके ऊपर से कंट्री चलाई जाती है पूरी। पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या होगा, कि मेरे पर्सनल लॉस क्या हैं जिसके थ्रू मैं डिसीजन लूंगा। तो जितना आपका पर्सनल मिशन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा, उतना करेक्ट डिसीजन आप ले पाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन करेक्ट प्रिंसिपल्स, इट इज द बेसिस ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन इन द मिड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इमोशन। देखो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा ना, जिसने डिसाइड कर लिया है कि मेरा मिशन स्टेटमेंट है, वो बार बार हिलेगा नहीं अपनी जगह से। और ये करेक्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगा ना, तो आपके करेक्ट डिसीजन भी होंगे। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। नाउ विल क्विकली सी कि आपको ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने में क्या चीजें हेल्प करती है। सो यू एंड अप यूजिंग योर होल ब्रेन। ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, काफी बार हमने सुना है। लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है। ठीक है। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, लॉजिक पे काम करता है। राइट ब्रेन क्या करता है, क्रिएटिविटी को फोकस करता है।
तो राइट ब्रेन का क्या होता है ना, विजुअलाइजेशन और ये इमेजिनेशन राइट ब्रेन में फॉल होती है ये एक्सरसाइज। तो दो तरीके क्या होते हैं राइट ब्रेन को टैप करने के, एक तो आपको पर्सपेक्टिव की एक्सरसाइज करनी है, आपका इमेजिनेशन, आपका पर्सपेक्टिव। सेकंड इज विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं, अफर्म करते हैं, अफर्मेशन रिपीट करते हैं, वी टेंड टू ब्रॉडन अवर पर्सपेक्टिव। तो लेट्स मी जस्ट रीड दिस पॉइंट। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे देखो लिखे हैं, एक्सपैंड पर्सपेक्टिव एंड विजुअलाइज एंड अफर्मेशन। योर क्रिएटिव ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट both in creating your personal mission statement and integrating in your life. Okay, so ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि होल ब्रेन यूज करोगे तो वो जल्दी से आपका मिशन स्टेटमेंट रूट में आता है, मैनिफेस्ट होता है। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट whatever you desire. Okay, now we are nearing the end of the session, so I'll just read a couple points जिसमें हम कैसे ये अप्लाई करना है वो पढ़ेंगे। ऑफ द फ्यूनरल एक्सरसाइज। नाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो गोल्स रोल्स से जुड़े होंगे, हम सब लोगों के कुछ रोल्स हैं। सो वी आर नॉट लिविंग अ मोनोक्रोम लाइफ, अ सिंगल लाइफ। देखो वी आर ऑल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। तो ये सारे रोल्स में हमारे कुछ गोल्स हैं। तो आपका जो भी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होगा वो तो एक ही होगा, इट कैन बी एज ब्रॉड एज यू वांट, बट उसके नीचे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बनाओगे दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर रोल्स। रोल्स है, उस रोल्स के हिसाब से गोल्स बनेंगे। देन स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ नोट्स। ये कुछ लोग करते हैं, आपको कुछ बुक में कुछ अच्छा लगता है, आपको कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, हम कलेक्ट करते ही है ना, कुछ कुछ लोग कलेक्ट करते ही है, कोट्स हम लिख के रखते हैं, कुछ कुछ आइडियाज हमें मिलते हैं। तो ये सब आप लिख के रखो, बिकॉज दीज विल गिव यू पावर टू पुट इन टू ऐड टू योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, सेटअप अ टाइम कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम डेली लाइफ टू राइट योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। यहाँ पे एनकरेजिंग बताया गया है कि आपको थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालना है, डेली रूटीन के अलावा एक छोटा सा टाइम सेपरेटली रखना है वीक में या डेली में जितना पॉसिबल है, जिसमें आप अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओगे। बिगिन विद द एंड इन माइंड है, तो पूरी लाइफ को ध्यान में रखते हुए वो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट अगर बनाना है तो आप उसको 2 मिनट में नहीं बना सकते। आपको सोचना होगा कि मेरे क्या वैल्यूज है, मेरे क्या रोल्स है, मैंने क्या क्या कंसिडर किया, मैं कहीं स्वार्थी तो नहीं हो रहा हूँ, इज दिस सेल्फिश, व्हाट इज माय पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ऑब्वियसली यू विल यूज राइट ब्रेन टू अप्लाई क्रिएटिविटी टू दैट, बट थोड़ा सोचकर आपको डेली इसके लिए या वीकली इसके लिए समय निकालना चाहिए। सो इन योर ओन डायरी यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। Okay, these are some encouragement activities for you to take this journey better. Okay, with this we will close the session. Thank you so much for listening.